Good morning, guys. So let's solve the today's POTD, GFG POTD. क्या है? Sum of sub-array ranges. Given an integer array ARR, the range of a sub-array is defined as the difference between the largest and smallest element within that sub-array. Okay. Your task is to return the sum of the ranges of all possible sub-array in the array. So let's suppose this is the array. Okay. So what are the possible sub-array that we can generate from here? 1, 2, 3, then 1, 2, then 2, 3, uh, 1, 2, 3. These are the possible sub-array that we can generate. Okay. As we can see, the largest element in that sub-array is 1, the smallest is 1, इसमें भी largest 2, smallest 2, largest 3, smallest 3. Okay. In this, the largest is 2 and the smallest is 1. The largest is 3, the smallest is 2. The largest is 3, smallest is 1. So what we have to do, like largest is, in this case, largest is 1, 1 and the smallest is 1. So we have to differentiate, take the difference of that. 0, difference 0, 0, difference 1, difference 1, difference 2. We have to sum these all. 0, 0 is all. We have to sum up and return the answer. So what we are doing, पहला तो यही काम कर सकते हैं कि generate all the subarray. Okay. In that subarray, in that subarray, find the largest and the smallest. Okay. We have find it out, and we have to, means sum is equal to 0 ले लेंगे और फिर sum plus is equal to largest minus smallest. So what is required? Generate all the subarray. In that subarray, find out the largest and the smallest, and we have to sum of the difference of the largest minus the smallest. So we can do this by using generating all the subarray will cost you big of n square, and searching for the largest and the smallest element will also cost you n. So the time complexity for this solution is big of n cube. So how can we optimize it? Okay. So what I'm saying, and that sum we have to return is, for each subarray we are finding the largest minus a smallest and doing that thing. There is one more way, that sum is equals to sum of all the largest element in all subarray. Let's suppose this is the subarray 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, and we have to find the largest 1, a small, largest 2, largest 3, largest 2, largest 3, largest 3. सम ऑफ लार्जेस्ट कर लिए और वैसे ही सम ऑफ स्मॉलेस्ट कर लेंगे और इन दोनों को भी माइनस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रिक्वायर्ड सम हो, रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, वो यही हो जाएगा, सम ऑफ स्मॉलेस्ट। ये भी कर सकते हैं ये। अब नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट, है ना। तो उसके लिए कैसे करेंगे अप्रोच? तो एक काम क्या कर सकते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ना, कि 1, 2, 3, sorry, 4, 3 and 5. Okay, this one is our array. Okay, so as you can see, हम सम ऑफ लार्जेस्ट फाइंड करना चाहते हैं ऑप्टिमाइज तरीके से कि बिग ऑफ एन में काम हो जाए हमारे पास। ठीक है, बिग ऑफ एन क्यू में तो कर ही सकते हैं कि हर एक वही सब एरे ले लिया, उसमें लार्जेस्ट फाइंड कर दिया, हर एक सब एरे उसको सम अप कर दिया हर एक में, तो वो तो कर लेंगे। बिग ऑफ एन में कैसे करेंगे? अच्छा, एक चीज देखो, मान लिया कि ये एक सब एरे बनाएगा, हो सकता है ये एक सब एरे बनाए, दो सब एरे बनाए, बहुत सारे हो सकता है ना कि ये खुद में एक सब एरे है, ये एक सब एरे हो जाएगा, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है।
तो बहुत सारे सब एरे में हो सकता है पार्टिसिपेट करे वन। देन वी हमें ये चाहिए कि ये कितने सब एरे में, कितने सब एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगर ये पता लग जाए तो वी आर फाइंडिंग दिस वन, सम ऑफ लार्जेस्ट। तो हमें बस ये चाहिए कि कितने सब एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट वन है। ओके, लेट्स सपोज वो uh, वो कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट एलिमेंट वन हो जाए, वो कितने सब एरे में हो जाएगा, क्योंकि ये एक सब एरे बनाएगा, दूसरा ये, फिर आगे 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 बनाएगा। लेकिन देखो ये एक ही ऐसा सब एरे है वन, एक सब एरे है जिसमें ये खुद में मैक्सिमम एलिमेंट है। तो कितना हुआ, वो एक हुआ। ठीक है, अब देखते हैं टू का, कितने सवेरे हैं जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कितना हो जाए, दो हो जाए। तो देखो एक तो सवेरे वन टू, इसमें सवेरे ये हो गया, एक टू, एक सवेरे है खुद में। तो दो सवेरे ऐसे हैं, वो तुम बना के देखना। ठीक है, एक सवेरे वन है, एक वन टू है, एक अपने पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू फोर हो जाएगा, आगे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे, बट दो ही सवेरे है जिसमें से टू, दो जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है। ये वो कौन कौन सा सब एरे है, वन टू एंड टू। तो यहाँ पर हमें पता है तो, ठीक है। और फिर फोर के लिए पता करते हैं कि कितने सब एरे हैं जिसमें से फोर एज ए मैक्सिमम एलिमेंट हो जाए। तो देखो एक फोर तो खुद में एक होगा, हाँ जी। फोर टू है क्या, देखो टू फोर में भी होगा, हाँ जी। वन टू फोर में भी होगा, हाँ जी। फोर थ्री में भी होगा जी। और कितने सब एरे होंगे, देखो टू फोर थ्री में भी होगा, ये वन टू फोर थ्री में भी होगा। देखो इतने सवेरे, सवेरे इज द कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस पार्ट। ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छह सवेरे में चार ऐसा वो हो जाएगा। फिर तीन के लिए पता कर लेंगे, फिर पांच के लिए पता कर लेंगे। अच्छा, ऐसा है। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि अब हम मुझे ये पता लग गया, मान लिए ये एक्स आया, ये भी वाई आया कुछ, ठीक है। अब हमें सम ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट पता करना था। वो कैसे होगा, देखो वन जो है एक सवेरे का पार्ट है, ठीक है। दो जो है, मतलब दो जो एलिमेंट दो है वो दो सवेरे में मैक्सिमम है। चार जो है वो एलिमेंट चार जो है छह सवेरे में मैक्सिमम है। तो सम ऑफ लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, वन इंटू वन। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी। ठीक है, ऐसे ये तो होगा ना सम ऑफ लार्जेस्ट, या कितने सवेरे में, कितने सवेरे में ये है तो, है ना। यू गॉट दिस। ओके, वैसे ही करके कि हम सम ऑफ मिनिमम फाइंड कर दें, सम ऑफ स्मॉलेस्ट, तो हमारा खेल हो जाए। और फिर हम रिटर्न कर देंगे सम ऑफ लार्जेस्ट माइनस सम ऑफ स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ हम नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड कि कितने फोर सिक्स एलिमेंट फोर जो है वो सिक्स सब एरे में मैक्सिमम एलिमेंट होगा। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एन एलिमेंट इज मैक्सिमम इन हाउ मेनी सब एरे। यही हमारे पास फाइंड करना है। ये पता कर दें तो हमारा खेल खत्म। तो देखो जैसे एग्जांपल क्या था अपने पास, वन टू फोर थ्री फाइव, ये लेट सपोज दिस, इसके लिए पता करते हैं हम अपना ये एलिमेंट ये है। ओके, तो हम लेफ्ट में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट है क्या, जो मेरे से बड़ा है, बोला ना। तो कितने एलिमेंट हो गया, तीन। राइट में जा रहा हूँ, ठीक है, राइट में गया, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, देखो पांच है इधर, ओके ठीक है। यहाँ से दो एलिमेंट, ऐसा देखो कि तीन, दो एलिमेंट इधर से, तीन एलिमेंट इधर से, तीन दो छह एलिमेंट। जैसे वो कौन कौन सा एलिमेंट तीन है, जैसे लेफ्ट में जाते जाओ तो कितने एलिमेंट है, वन टू। राइट में गया तो कितने एलिमेंट है, तीन। और बीच में क्या है, फोर खुद है। तो फोर एज ए मैक्सिमम, देखो फोर एज ए मैक्सिमम की बात करें तो लेफ्ट में जाते गया तो मुझे ये दो एलिमेंट उससे छोटा मिला, क्योंकि फोर एज ए मैक्सिमम है तो इससे हम लेफ्ट में जाते जाते मैं सबसे छोटा एलिमेंट खोजूंगा ना।
है ना? अगर मान लीजिए इससे बड़ा खोज लिया तो भाई 4 एज ए मैक्सिमम नहीं रहेगा, यू गॉट दिस। तो हम लेफ्ट में जाते गए और देखे कि कौन कौन सा, और ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस तो रहना ही है क्योंकि सब एरे कंटिन्यूअस होता है, तो 4 एज ए मैक्सिमम खोजना था। तो लेफ्ट में जाते जाते मैंने देखा कि कितने कंटिन्यूअस कितने एलिमेंट हैं जो 4 से छोटा है ना? कितने एलिमेंट कंटिन्यूअस है, ऑफ कोर्स लगातार यहाँ से मैं जाऊंगा और खोजता जाऊंगा कितने एलिमेंट हैं, ठीक है? यहाँ से जाऊंगा, खोजूंगा कितने एलिमेंट है कंटिन्यूअस। अगर कोई बड़ा आ गया तो उसको नहीं include करूंगा। मान लिया 1 2 4 3 आ गया, 4 जिसमें से मैक्सिमम है। तो अब नाउ हम पता कैसे करेंगे कि 6 आंसर आए, कि 6 सब एरे बना रहे हैं। देखो इसमें से कौन कौन सा सब एरे बनेगा, देखना। 2 4 एक सब एरे बनेगा, यह 1 2 4 बनेगा, यस। 4 खुद में एक बनेगा, यस। 4 3 एक खुद में बनेगा, यस। देखो 2 4 बनेगा, यह। 1 2 एंड 4 बनेगा, यस। 4 3 बनेगा, यह। और देखो 2 4 3 भी बनेगा। कौन कौन सा? 2 4 3 भी बनेगा। और क्या बनेगा? 1 2 4 3 बनेगा। कोई बोल सकता है कि 1 4 बनेगा, नो, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो 1 4 कंटिन्यूअस नहीं है। तो 6 सवेरे हमारे पास पता लग गया। ओके, तो हमने 6 कैसे निकाला? तो ऐसा ले तू बोल सकता है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट था ना, हाँ। तो देखते जाएगा कितने लेफ्ट का साइज, मतलब कि लेफ्ट में जाते जाओ और कितने कंटिन्यूअस तुम्हें, कितने 4 से छोटे कितने सवेरे मिल जाते हैं, कितने एलिमेंट मिलते हैं 4 से छोटे कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट साइज निकाल लेगा। फिर वही राइट में भी जाके वही करेगा तू, कि चेक करेगा कि, कि कितने एलिमेंट्स हैं कंटिन्यूअसली जो कि 4 से छोटे हैं। तो राइट का साइज, लेफ्ट का साइज मैंने क्या बताया था, 2। राइट का साइज कितना हो जाएगा? 2। सॉरी, व्हाट वी आर मिसिंग, दिस इज नॉट टू। हाउ वी विल कैलकुलेट कि 4 को मिला करके देखेंगे कि 4 को मिला करके कितने लेफ्ट में छोटे हैं। तो 2 है और एक 3, और राइट में भी वही करेंगे। कितने एलिमेंट हैं? तो 4 और 3 है, तो 2। तो 3 into 2 करेंगे ना, तो वो 6 दे देगा आंसर, जो कि हमारे पास है कि एलिमेंट 4 जो है वो 6 सब एलिमेंट में मैक्सिमम होगा। यू गॉट दिस? ओके, यस। देयर इज ए, अब हमें पता है हम अभी क्या कर रहे हैं, सम ऑफ मैक्सिमम ही फाइंड कर रहे हैं। ओके, सम ऑफ मैक्सिमम ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, वी नो, अगर मैंने लेफ्ट साइज निकाल लिया, वी नो अगर राइट साइज वी आर निकाल लिया, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एलिमेंट, लाइक इन आवर एग्जांपल 4, उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मैक्सिमम में? वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट का साइज कितना है, 3 into 6, तो ये हो जाएगा कि इतने सारे एलिमेंट्स में, है ना, इतने सारे एलिमेंट में 4 एज ए मैक्सिमम होगा। और इतने सारे एलिमेंट में 4 का मैक्सिमम हुआ, बट मैक्सिमम सम चाहिए ना, तो वो एलिमेंट क्या है, 4 है, तो वो क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई बेसिकली कह देता हूँ, ठीक है। तो वो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका मैक्सिमम सम में, कितना हो जाएगा? तो लेफ्ट का साइज इंटू राइट साइज, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इंटू वो एलिमेंट्स इटसेल्फ करेगा कितने एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम सम आ जाएगा, है ना? अगर यू गॉट ना, या नाउ, we have to look that ki how we should find the left size and right size. Okay, so take one example, like uh, 1 2 4, okay, 4 3 5। अब मुझे ये देखना है इस एलिमेंट के लिए कि कितने एलिमेंट्स हो जाएगा। फॉरगेट, फोर को ही देखते हैं, ठीक है। 4 के लिए देखते हैं, तो अपना देखो, अब ये चीज तो पता होगा कि नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट हो पता कर लेंगे, और नेक्स्ट ग्रेटर, सॉरी, नेक्स्ट ग्रेटर राइट, ये सब नहीं पता है तो पढ़ के ओ आई ये सब पढ़ लो। नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट, नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट, नेक्स्ट स्मॉलर टू लेफ्ट, नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट, ये सब पढ़ लो एक बार, ठीक है, तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि जैसे देखो इस इंडेक्स डिनोट करते हैं 0 1 2 3 4, तो अपना इस एलिमेंट के ना नेक्स्ट ग्रेटर टू लेफ्ट लगाएंगे कि सबसे बड़ा एलिमेंट लेफ्ट में कौन सा है, इससे 4 से बड़ा कौन सा है, तो वो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर देगा, -1। और 2 - 0 कर, 2 - -1 करो, लाइक
खुद का इंडेक्स माइनस एनजीएल वाला कितना देगा कि कोई भी वैल्यू नहीं है इधर जो कि 4 से बड़ा है, तो -1 रिटर्न कर देगा। तो 2 माइनस माइनस ऑफ 1 कितना दे देगा? 3 देगा। ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं। ओके, एनजीएल तो पता लग गया कि ये लेफ्ट का साइज दे दिया है ना, ये ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट का साइज 3 आ गया इसका। अगर हमें फिर वही राइट साइज चाहिए तो क्या करेंगे? नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट देखेंगे। नेक्स्ट ग्रेटर टू राइट इस एलिमेंट के लिए देखा तो क्या देगा? ये एलिमेंट देगा कि नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट, वो इंडेक्स क्या देगा? 4 देगा। तो 4 माइनस खुद का इंडेक्स देखो कितना है, 2, तो 2 आ जाएगा। देखो राइट का साइज भी 2 हो गया। अब मुझे क्या करना था? कंट्रीब्यूशन इस एलिमेंट के लिए कितना हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन इस एलिमेंट के लिए कितना हो जाएगा कि लेफ्ट का साइज 3, राइट का साइज 2, तो ये जो 4 है वो 6 एलिमेंट में पार्टिसिपेट करेगा एज ए मैक्सिमम, इनटू खुद का साइज, खुद एलिमेंट वो क्या है? 4, तो इसका कंट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है ये निकाल दिया, जैसे इंट कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। अब मुझे मैक्सिमम सम चाहिए था। मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सम प्लस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये तो इस तरह से हम मैक्सिमम सम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, उसका हमने लेफ्ट साइज पता कर लूंगा, राइट साइज पता कर लूंगा हर एक एलिमेंट के लिए, और उसका कंट्रीब्यूशन निकाल दूंगा। लेफ्ट साइज कैसे निकालेंगे? लेफ्ट साइज निकालने का फॉर्मूला है अपने पास, लाइक आई माइनस ऑफ एनजीएल ऑफ आई। ठीक है, वैसे ही राइट साइज कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट ग्रेटर टू द राइट ऑफ आई माइनस ऑफ आई। ठीक है, ये दोनों निकाल लिया, लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, मैक्सिमम सम में ऐड करते जाएगा तो हमारे पास मैक्सिमम सम आ जाएगा। सेम काम हम क्या करेंगे मिनिमम सम के लिए? जैसे क्या है 1 2 4 3 5। ओके, अब हमें क्या चाहिए कि 4 एज ए मिनिमम कितने एलिमेंट में है? तो अब यहाँ पर जो काम हम एनजीएल कर रहे थे यहाँ पर करेंगे। एनएसएल के लिए हम पता कर लेंगे कि नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट कौन सा है, नेक्स्ट स्मॉलर टू राइट कौन सा है। तो वो देखो, नेक्स्ट स्मॉलर टू द लेफ्ट यही इंडेक्स है, 0 1 2 3 4, वो इंडेक्स क्या आएगा? 1। नेक्स्ट स्मॉलर टू द राइट कितना आ जाएगा? 3 ही है। ठीक है, अब ये तो पता लग गया हमें। अब हमें क्या चाहिए? लेफ्ट का साइज। लेफ्ट का साइज क्या बताया था तुझे कि 2, मतलब खुद का इंडेक्स कितना है? 2 माइनस एन एस एल ऑफ आई कितना आ जाएगा? 1, तो 1। राइट का साइज बताओ। राइट साइज बताओ। तो राइट साइज इक्वल टू क्या बताया था? 3, खुद नहीं सॉरी, हाँ एन एस आर ऑफ आई 3 माइनस ऑफ ये 2, खुद का इंडेक्स 2, ये 1। तो अब देखो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कि इस कंट्रीब्यूशन कि 4 एज ए मिनिमम कितने एरे में प्रेजेंट हुआ, तो लेफ्ट साइज इनटू राइट साइज निकाल देंगे। ओके, मिनिमम सम है ना, तो इतने कंट्रीब्यूशन हुआ और एलिमेंट कौन सा है? 4, तो 4 मिनिमम के लिए यही काम करेंगे, तो मिनिमम सम निकल जाएगा अपना। तो मैक्सिमम सम मिनिमम सम निकल गया, फिर माइनस कर लेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए ये सब काम कर देंगे। ये 4 फंक्शन हमें तो बनाना ही पड़ेगा, ये 4 फंक्शन बना लिया, उसके बाद देखते हैं कैसे काम करेंगे। सो पहली बात की कि एनजीएल, एनजीआर, एनएसएल और एनएसआर, तुमने सारे कोड को मतलब देख ही लेना है। ठीक है, सारे फंक्शन बना लिया और सबको एक वेक्टर में सबको वेक्टर्स में स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए था? सम ऑफ लार्जेस्ट पता कर लो, सम ऑफ स्मॉलेस्ट पता कर लो, और दोनों को माइनस रिटर्न कर देना, माइनस सम ऑफ लार्जेस्ट माइनस सम ऑफ स्मॉलेस्ट, ये कर देना। ठीक है, अब मैं क्या करना था? ओके, हमें क्या करना था? सम ऑफ लार्जेस्ट फाइंड करना था। तो सम ऑफ लार्जेस्ट कैसे फाइंड करोगे? तो पहली बात की लेफ्ट का साइज बता दो। लेफ्ट का साइज का फॉर्मूला मैंने बताया था। अभी मैं मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ लार्जेस्ट सम के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कितने एलिमेंट में वो मैक्सिमम है, कितने एलिमेंट में वो मिनिमम है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो लेफ्ट साइज आ जाएगा अपने पास, कैसे, क्या बताया मैंने? हाँ, आई माइनस एन जी एल ऑफ आई, और लेफ्ट साइड आ जाएगा
मैक्सिमम के लिए बता रहा हूँ, तो मैक्सिमम यूज करेंगे तो एनजीएल यूज करेंगे, और फॉर मिनिमम एनएसएल यूज करेंगे। देखो, तो राइट साइड बता देंगे एनजीआर ऑफ आई माइनस आई। अब सम ऑफ लार्जेस्ट में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है, आईएथ एलिमेंट जो है वो कितने में पार्टिसिपेट है ये बता देगा, लेफ्ट साइड इंटू राइट साइड, और उसका कंट्रीब्यूशन ये दे देगा। तो ओवरऑल ये काउंट्री हो गया, तो सम ऑफ लार्जेस्ट पता कर लेंगे। और वैसे ही सम ऑफ स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, आई माइनस एनएसएल ऑफ आई, और राइट साइड में एनएसआर ऑफ आई माइनस आई, और सम ऑफ स्मॉलेस्ट पता कर लेंगे ऐसे। आई थिंक यू गॉट दिस। तो पूरा कोड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सारा कुछ सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनजीएल एनएसएल कुछ में प्रॉब्लम नहीं है। देखो प्रॉब्लम एक, देखो क्या होगा, यू कैन सी दैट लाइक 26242। अभी हम सम ऑफ लार्जेस्ट ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ लार्जेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो हम दो के लिए देखते हैं कि दो कितने सब एरे में प्रेजेंट है। तुमने क्या इसके लिए देखेगा कि कोई भी मिनिमम नहीं है, तो दो 6 लेफ्ट में आ जाएगा, दो इधर आ जाएगा, सम ऑफ लार्जेस्ट है ना। ओके, सॉरी सॉरी। So as we can see कि the there is contribution of 2 for the maximum is counted one, and for the minimum is counted one. I am not able to explain this for this as most, so you can watch the one video of code story with Mike. Edge cases you can watch, and he explained uh, very best. So code story with Mike. The question name is, I think, sum of sub-array maximum or minimum. In that, there is a one edge case we have to follow. You should look at that. Okay, that's all. Thank you for that. Thank you for understanding. Okay, bye.